Hello, one and all. Myself, Dr. Sushma, is going to present the e-content of Cluster University of Jammu of class BS Mr. 4th, and the core course is Educational Psychology and Pedagogy. And I am going to present Unit 5th, and the topic is difference between traditional and modern teaching. The objective of this e-content is to enable the learner to understand the concept of modern and traditional teaching. Here, the learner is also able to recall the concept of modern and traditional teaching. And after going through this e-content, the learner is able to distinguish between modern and traditional teaching. So, now we will first of all try to learn about the concept of traditional and modern teaching, and after that we will discuss about the difference between modern and traditional teaching. So in the present slide we will try to learn the concept of these two types of teaching. Number one, we have traditional teaching. In traditional teaching, it is mainly concerned with the teacher and he is being the controller of the learning environment. Here, in this traditional type of teaching, teacher is the active participant and he is the instructor, and here in this type of teaching, the students are the passive listeners. Learning is mainly associated within the classroom. What we have learned in this concept of traditional teaching? In this, we have learned that जो teacher है, he is the controller of the learning environment. And here, teacher is the active participant और जो students हैं, they are only the passive listeners. And here जो learning है वो बच्चे within the classroom जो है वो knowledge gain करते हैं. In the second, that is the modern teaching, here it is totally contrary to the traditional type of teaching. Here teaching is activity based with technology driven classrooms, and here teacher is not being the controller of the learning environment, but he is just the facilitator. And here the main focus and the emphasis is on skill building, life skills and values. And here the students are no longer the passive listeners. यानी कि मॉडर्न टीचिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज ये सारा एक्टिविटी बेस्ड होता है टीचिंग. इसमें जो टीचर है वो एक सिर्फ नॉलेज गिवर ही नहीं है, बट वो कैसे एक्ट कर रहा है, ही इज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर. वो बच्चों को फैसिलिटेट करता है विथ ब्रॉड विजन्स रिगार्डिंग द नॉलेज. हियर दिस टीचिंग इज बेस्ड ऑन skill building, life skills and values also. क्योंकि ये है ही एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें मॉडर्न टीचिंग में ज़्यादा किस पे एम्फेसिस दिया गया है, टेक्नोलॉजी पे. यहाँ पे मैक्सिमम यूजेज किसका है, यूटिलाइजेशन किसकी है, आईसीटी की है. विद द हेल्प ऑफ दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो उसको गेन कर सकते हैं. देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन traditional teaching and modern teaching. We will discuss some of the points, and I hope from the concepts आप अच्छे से समझ गए होंगे कि traditional teaching क्या होती है और modern teaching क्या होती है. In case of traditional teaching, teachers serve as the source of knowledge. इसमें source of knowledge कौन है, teacher है. But in case of modern teaching, teachers serve as the facilitator of knowledge. नो डाउट वो नॉलेज डिसेमिनेट करते हैं, बट दे आर सर्विंग एज ए फैसिलिटेटर.
इसमें कोई स्पून फीडिंग जो है वो नहीं होती है, बिकॉज मॉडर्न टीचिंग में इट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग एटसेट्रा। हम यूँ कह सकते हैं कि जो मॉडर्न टीचिंग है वो प्रैग्मेटिक अप्रोच पे बेस्ड है, यानी कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हियर इन ट्रेडिशनल टीचिंग फोकस इज ऑन द मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन। इस पे किस बात पे फोकस है? लर्निंग किस तरह से की जाती है? थ्रू मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन मेथड्स। बट इन केस ऑफ मॉडर्न टीचिंग इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। फाइन। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब है इसमें थ्रू डिस्कशंस, थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, थ्रू प्रोजेक्ट मेथड्स जो नॉलेज है वो गेन की जाती है। वी कैन से दैट इट इज एक्टिविटी सेंटर्ड, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो नॉलेज गेन करते हैं। हियर इन केस ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग ऑब्स्टेकल इज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि ट्रेडिशनल टीचिंग में जो नॉलेज है वो दी जाती है थ्रू द टीचर्स, उसमें फोकस किसके ऊपर है? मेमोराइजेशन के ऊपर है। और जब फोकस मेमोराइजेशन के ऊपर होगा तो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। सो ऐसा कहा गया है कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग उनमें जो डेवलप होने के लिए ट्रेडिशनल टीचिंग एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। और इन केस ऑफ मॉडर्न टीचिंग देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। मॉडर्न टीचिंग में बच्चे को, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ द नॉलेज एंड ब्रॉडन देयर विजन रिगार्डिंग द वेरियस लर्निंग्स। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा चांस मिलता है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का, because while learning by doing or through the activity based projects they learn much more in practical form. Then we have in case of traditional teaching method of developing theoretical thinking. ट्रेडिशनल टीचिंग में भी नॉलेज गेन करता है लर्नर, नो डाउट, लेकिन उसका जो बेस है वो क्या होता है? दैट इज थ्योरेटिकली बेस्ड। उसमें क्या है? डेवलपमेंट किसका है? थ्योरेटिकल थिंकिंग का। बट इन केस ऑफ मॉडर्न टीचिंग देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग, बिकॉज जैसे हमने कहा कि वो जो मेथडोलॉजी है इन केस ऑफ मॉडर्न टीचिंग में वो क्या है? वहाँ पे जो टीचर्स हैं वही एक सोर्स नहीं है नॉलेज का, दे आर जस्ट द फैसिलिटेटर। सो उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप होता है। इन केस ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द टीचर। ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या है? टीचर का फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस जो है टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। But on the contrary, physical presence of the teacher may not be necessary in case of modern teaching. अभी जो हम e-content का example इसमें ले सकते हैं, while teaching through online mode, through GCR, through different apps when we used for teaching थ्रू ऑनलाइन मोड, तो उसमें क्या है? वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होना टीचर का ज़रूरी नहीं है। जैसे हम अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे डाल देते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स, तो उसमें आप कभी भी जो वो लेक्चर्स हैं वो सुन सकते हैं और तब उसका टीचर का फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि मॉडर्न टीचिंग में व्हेन वी यूज़ द digitalization procedures, or we can say when we use technological gadgets in the teaching learning process, then there is also a provision of learning anytime anywhere. So in case of traditional teaching it isolates the students from the society. इसमें क्या होता है? जैसे हमने पहले आपसे कहा कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग है वो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम में दी जाती है, तो ऑब्वियसली क्या होएगा? उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो सोसाइटी से क्या होंगे? वो आइसोलेट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उन्हीं विद इन 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम में अपना लर्निंग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और इसके अलावा वो कोई और प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगे।
But in case of modern teaching, there is exploiting the modern teaching helps in exploiting the use of the technological gadgets, textbooks and other content material in exposing the students to a worldwide view of the learning. इसमें क्या होता है, इसके थ्रू मॉडर्न टीचिंग के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द आईसीटी, विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी जो नॉलेज है उसे सोसाइटी में एक्सपोज कर सकते हैं, हम उसमें अपने आइडियाज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज मॉडर्न टीचिंग जो है वो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम के बाहर है. तो इसमें आपको लर्नर को, इवन के टीचर को ऑल्सो इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको ये चांस मिलता है कि वो अपनी नॉलेज को ब्रॉडन कर सकते हैं और लर्नर को फैसिलिटेट कर सकते हैं विद न्यू एंड लेटेस्ट knowledge also. So I hope with these some of the points you all will be able to recall and understand the concept of traditional and modern teaching, and also you all will be able to differentiate between traditional teaching and modern teaching. With these words I would like to thank you all the listeners. Thank you so much.